Good evening, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do PIB and from 1st to 15th of January 2022. Here this is misprint. Uh, we will take up each, each topic from GS paper 1 to GS paper 3. There are approximately 19 topics we will do one by one. Regarding the first topic, first topic mentions about Prime Minister who have greeted the nation amidst of different festival that has been celebrated in the month of January. First is Makar Sankranti. It is dedicated to Lord Surya and it denotes the entry of the sun into the zodiac sign of Capricorn, that is Makara. Then there are names of different festivals that has been celebrated across the country. First is Lohri by North Indian Hindus and Sikh, Sukarat, Central India, Bhogali Bihu by Assamese Hindu, Pongal by Tamil Nadu and other South Indian Hindus. तो ये मैप इम्पॉर्टेंट है. मगी, लोहरी, खिचड़ी पर्व, यूपी, मकर संक्रांति, देन पौष संक्रांति, मकर संक्रांति, पेडप, पंडुया, पोंगल, उत्तरायण गुजरात, मग बिहू असम. The next article is talking about the goat head yogini that has been returned to state of Uttar Pradesh. It was illegally removed from temple in Banda in 1980. It has been returned. तो सबसे important point इसमें है कि it is part of the yogini cult and temples, tantric tradition. That is very important. Yoginis क्या है? Yoginis is a group of female divinities associated with tantric mode of worship. They are worshipped as a group. हमेशा बात करते हैं 64 योगिनीस के बारे में, 64 योगिनीस. They are believed to have a infinite powers. These are demigods who are part of tantric practices. Those 64 yoginis, 64 yogini is very important. Then next article is talking about the freedom fighter Rani Velu Nachiyar. Prime Minister remembered her on her 292nd birth anniversary. She was born in 1730. So first point is very important. First queen to fight against British colonial power in India. A century before Rani of Jhansi. तो ये important point है. Second, she was princess of Ramanathapuram और she was also known as Veermangai by Tamils. She had learned various martial arts such as Valari, Silbam, horse riding, archery. She was proficient in French, English, Urdu. She fought against the British with the military assistance from Gopala Nayakar, Hyder Ali and also won the battle. तो उनका कंट्रीब्यूशन था रिगार्डिंग द फ्रीडम स्ट्रगल और साथ ही साथ शी वॉज द फर्स्ट वीमेन इन इंडिया टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश. शी हैड फॉर्म्ड वीमेंस आर्मी नेम उदयर. तो उदयर पूछ सकता है एग्जाम में. और दैट्स ऑल. गवर्नमेंट हैज इशूड अ स्टैम्प इन 2008. तो अदर एमिनेंट वीमेन कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल तो बात कर चुके हैं. रानी वेलू नचियर, उसके बाद लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी गाडिंगलू, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा असफ अली, विजय लक्ष्मित पंडित, लक्ष्मी शेगल, कमरा नेहरू, इंदिरा गांधी इज रिसेंट वन, मैडम कामा, बेगम हजरत महल, सुचेता कृपलानी, सिस्टर निवेदिता, एनी बसंत, एक्सेट्रा. The next article is talking about the Veer Bal Divas. Veer Bal Divas is to pay homage to the courage of Sahibjada. Sahibjada मतलब 4 son of Guru Gobind Singh, the last Guru.
तो साहिबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह were captured by the Mughals, or they refused to become Muslim and therefore they were executed. So they showcases the principle of dharma and principle of non-violence and साथ ही साथ their dedication towards the God and goddess towards its own religion. तो गुरु गोबिंद सिंह इंपॉर्टेंट है. गुरु गोबिंद सिंह born in Patna 1666, only son of Guru Tej Bahadur. Guru Tej Bahadur was executed, beheaded by Aurangzeb. He formed Khalsa in 1699. साथ ही साथ उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो जाप साहिब, बेंटी चौपाई, अमृत सवई. ही फाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ खालसा 5K, केश, कंग, काड़ा, कृपान और फिर कच्चा. He took part in many battles against the Mughal ruler Aurangzeb. He wrote Zafarnama, in which he criticized the policies of Aurangzeb in a very simple, very diplomatic, very sharp manner. तो 4 साहिबजादे उनके जो बेटे को कहते हैं, अजीत सिंह, जौहर सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह. जोरावर सिंह and Fateh Singh was the 2 youngest of 4 साहिबजादे, or they were bricked alive in 1705 because they refused to become Muslim. Other of the 2 princes, Ajit Singh and Jauhar Singh, fought in Chamkaur battle and attained martyrdom. तो इम्पॉर्टेंट इसमें है गुरु गोविंद सिंह का कंट्रीब्यूशन और साथ ही साथ जो 4 साहिबजादे का नाम. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द इंडो यूएस ट्रेड कॉमर्स. तो किसके बीच में हो रहा है, किसके बीच में हुआ था? तो फर्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. दिस इम्प्लीमेंटेड 2+2 एग्री मार्केट एक्सेस. उसके तहत में इंडियन मैंगोज अलॉन्ग विद द पोमेग्रेनेट विल बी सप्लाइड टू यूएस फ्रॉम इंडिया, एंड फ्रॉम यूएस cherries and alfalfa hay will be brought. तो alfalfa hay है क्या? It is a legume hay in a pea family and it is used for various purposes such as for the feed for the horses, dairy cows, beef, cattle, sheep, chickens, turkey, etc. because they are very high in energy and excellent source of vitamin minerals. साथ ही साथ तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूएस जीएसपी. यूएस जीएसपी है क्या? इट was basically a duty-free tariff treatment to the certain product imported to USA from beneficiary developing countries. तो वो हटा दिया गया है इंडिया का. $5.6 billion जो एनुअल एक्सपोर्ट था फ्रॉम इंडिया टू यूएस, इट वाज अंडर यूएस जीएसपी, वो हटा दिया गया. तो साथ ही साथ और क्या चीज़ में इन्हांस होगा मार्केट एक्सेस फॉर द इंडियन गुड्स? तो 2 है, वाटर बफेलो मीट और वाइल्ड कॉट श्रिम्प फ्रॉम इंडिया. The next article is talking about a joint development agreement between India and Africa. तो पहला पॉइंट है कि अफ्रीका 50 है क्या, क्योंकि वो भी जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट जो साइन हुआ है बिटवीन द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड अफ्रीका 50. तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अफ्रीका 50 है क्या. अफ्रीका 50 इज अ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दैट कंट्रीब्यूट्स टू द अफ्रीकन ग्रोथ by investing in the infrastructure project. It has basically 28 countries and other shareholders such as African Development Bank, Central Bank of Western Africa, etc. Then next article is talking about the NEET 3.0. So it is being promoted, it is being implemented by Ministry of एजुकेशन. नीट मतलब होता है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करे
to enhance the employability of the youth and also to increase the better learning outcome in the higher education. तो उसके कारण स्किल डेवलपमेंट इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ जो लर्निंग गैप है वो डिक्रीज करेगा और एम्प्लॉयबल जो बेनिफिट है स्किल्स है वो बढ़ेगा स्टूडेंट्स का. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नीट. Then next article is talking about the GIS based automated water connection. तो first is GIS based automatic water subsystem. It has been developed by Bhaskaracharya Institute of Space Application Geoinformatics under the Directorate General of Defence State. It is completely user-friendly, completely automated, and it supports the concept of minimum government and maximum governance. It will be providing seamless end-to-end delivery of the service. Then next is talking about the eJavanni portal. It is for unifying 62 containment boards which will help the citizen to have ready access to information regarding the containment board. तो उससे क्या क्या होगा? इट विल ईज ऑफ लिविंग, साथ ही साथ कम्युनिटी हॉल को बुक कर सकते हैं, सेंट्रलाइज एक्सेस टू सिविक सर्विसेज टू द कैंटोनमेंट रेसिडेंट. तो कैंटोनमेंट बोर्ड है क्या? इट इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कैंटोनमेंट एक्ट 2006. करेंटली देयर आर 62 कैंटोनमेंट बोर्ड. और किसके अंडर में आता है? इट इज़ डीम्ड टू बी म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243B. तो ये क्या करता है? ये बेसिकली इट रिसीव्स द ग्रांट एंड एलोकेशन एंड इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स द schemes and social sector, public health, hygiene, water supply, sanitation, etc. It is under the station commander of the cantonment and the officer is Defence State Organization. He is the CEO. The next article is talking about the district level governance index. So Jammu Kashmir is will become first union territory in the country to have a district level good governance index model on good governance index. The good governance index is prepared by Department of Administrative Reform and Public Grievances under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. So basically it ranks the states and districts अकॉर्डिंग टू द गवर्नेंस इंडेक्स. गवर्नेंस कैसा हर एक का सीमलेस है कि नहीं है उस पर रैंक किया जाता है. तो वैसे ही जैसे स्टेट के लिए है वैसे ही जम्मू कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए इम्प्लीमेंट किया है. तो इट विल हैव criteria such as increase in transparency, accountability, citizen participation and also timely disposal of office cases, office files etc. गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है उसको भी यूज किया जाएगा टू द तहसील एंड ब्लॉक लेवल. तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो इंडिया में उसमें कौन टॉप किया? तो पहला पॉइंट है कि गुजरात ने टॉप किया था, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड गोवा, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली. तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट article talks about the one district one product brand. National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, NAFED. It has launched one district one product under PMFME, Pradhan Mantri Formalization of Food Processing Enterprises. उससे क्या होगा? जो भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है डिस्ट्रिक्ट में, they will be able to channelize their own product in a better way. जो भी डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा एक एरिया में कवरेज मिलेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और साथ ही साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगा. तो कौन कौन से प्रोडक्ट है? बस ये एग्जाम्पल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है.
पहला फ्री रेंज बीज जिससे जो हनी बनता है उसका ब्रांड मधु मंत्र, होल व्हीट कुकीज, अमृत फल एक्सेट्रा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इट कैन बी वन और ऑल्सो वन क्लस्टर ऑफ प्रोडक्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट। देयर मे बी अ क्लस्टर ऑफ प्रोडक्ट्स consisting of different districts in state. The next article is talking about the green energy corridor. The cabinet committee in economic affairs have approved phase 2 of green energy corridor. तो इंडिया का जो टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय 2030। तो जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है उससे इंटीग्रेशन, ग्रिड इंटीग्रेशन और साथ ही साथ जो सीमलेस ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू रिड्यूस द शॉर्टेज ऑफ पावर, ये आसानी से हो सकेगा। और जो डिमांड है पावर का, पावर सर्च, और ये पूरा हो सकेगा। तो पहला पॉइंट है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज़ 1 में कौन कौन से स्टेट्स में है, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। 24 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन फेज़ 2 में इट विल कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है टारगेटेड 10,700 किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड अप्रॉक्सीमेटली 27,000 मेगा वोल्ट एम्पियर MV। इट इज़ बीन मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। दूसरा, स्कीम टू हैव अ 33% सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट। इसका मतलब ये टोटली सेंट्रल असिस्टेंस में नहीं है, इसका और भी क्राइटेरिया फंडिंग होगा। 33% ही सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट है। The next article is talking about the mobile honey processing van. KVIC has rolled out mobile honey processing van to support farmer and beekeeper. Mobile van has been designed in-house by KVIC at a cost of 15 lakh. तो it is this initiative in a line of Prime Minister dream of स्वीट क्रांति। तो स्वीट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो हनी से रिलेटेड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन क्या है, अंडर नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। लेकिन जो हनी मिशन प्रोग्राम है इट इज़ लॉन्च्ड बाय KVIC, इम्प्लीमेंटेड बाय MSME। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग प्रीलिम्स कि कौन मिनिस्टर है, कौन मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो उसको लॉन्च करता है, प्रमोट करता है, इम्प्लीमेंट करता है और मॉनिटर करता है। तो नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन है, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। उसमें प्रमोट किया जाएगा साइंटिफिक बी कीपिंग को इन अ हॉलिस्टिक मैनर, ताकि इनकम बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़े, लाइवलीहुड बढ़े इन द नॉन फार्मिंग हाई हाउस होल्ड। साथ ही साथ इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, 100% बैकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का है। देन हनी मिशन इट इज़ लॉन्च बाय KVIC, बात कर चुके हैं। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME 2017-18। तो इसके अंडर में जो फंड होगा स्फूर्ति, इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME। उससे क्या होगा, दे विल बी गिवन fund regarding the machinery and training so that the unemployment youth, Adivasi farmers, especially in the economic and backward remote areas can get employment in these activities. तो बी कीपिंग से क्या फ़ायदा है, शॉर्ट में बता सकते हैं कि क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ता है, ऑयल सीड पल्सेस का बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है, लाइवलीहुड सोर्स जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स ऑफ फार्मर्स बढ़ता है। और बी वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द होल food chain and also the diversity and also the conservative part of the environment. No, अगर pollination नहीं होगा तो plant animal consequently die कर जाएंगे अर्थ में। The next article is talking about the M1 category
तो M1 कैटेगरी किससे रिलेटेड है ये पूछ सकते हैं। तो M1 कैटेगरी इज रिलेटेड टू द व्हीकल्स का जो एक नया आया है रेगुलेशन। पहला है कि अभी 6 एयरबैग कंपलसरी गाड़ी में नहीं है, नोटिफिकेशन है, लेकिन जो कंपलसरी है वो 2 एयरबैग कंपलसरी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। पहला है कि दिस व्हीकल इंक्लूड्स मोटर व्हीकल दैट कैरी पैसेंजर। M1 व्हीकल मतलब क्या होता है कि 8 से ज़्यादा सीट नहीं होना चाहिए इसमें, और एयर बैग होगा वो मैंडेटरी होगा ड्राइवर का 2019 से, और साथ ही साथ 2022 से 1 जनवरी 2022 जो पैसेंजर एयर बैग है वो भी मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा। तो 2 एयर बैग अभी कंपलसरी है, 6 नहीं है। तो एक डेटा छोटा डेटा है कि 50,000 लाइफ वे सेव्ड अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल ट्रैफिक सेफ्टी डेटा फ्रॉम 1987 to 2017. The next article is talking about the PLI scheme in advanced chemistry cell battery storage. The government has approved PLI scheme in the national program on advanced chemistry cell battery storage. तो PLI scheme जो है it is aimed to reduce import, साथ ही साथ it is implemented under Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises. ये implement करेगा इसको। तो important point है। Then it is targeting to achieve 50 gigawatt hour of जो storage capacity है। Advanced chemistry cell है क्या? It is a new generation advanced storage technology that can store electricity with the use of chemical energy to electricity, और साथ ही साथ जो बैटरी होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ नहीं होगा, वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द NTCA। तो अभी चीता के बारे में बात किया जा रहा है कि 1950s में इंडिया में जो चीता है दैट हैव गॉन एक्सटिंक्ट। तो टारगेट है कि 50 चीताज विल बी ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया इन नेक्स्ट 5 years। और जो 50 चीताज हैं तो कौन इसको कौन लाएगा? तो विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे विल ट्रांसलोकेट अराउंड 8 to 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना। तो ये 3 कंट्री से लाया जाएगा। कहाँ पर? कूनो पालपुर नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो NTCA है क्या? NTCA is statutory body under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was established in 2005 with the amendment of WPA, that is Wildlife Protection Act 1972. It was for tiger conservation, and the authority and power were given to it. CATS is a series of tiger sites। ये क्राइटेरिया है रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। एक तरह का क्रेडिट मैकेनिज्म है कि क्या सही में जो टाइगर साइट्स है वो फुलफिल करता है क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। तो देखा जाए तो देर आर 13 टाइगर रेंजेस कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। 70% ऑफ टाइगर इंडिया में है। साथ ही साथ ग्लोबल टाइगर फोरम, इट इज़ ए NGO। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव डिफरेंट है ग्लोबल टाइगर फोरम से। ग्लोबल टाइगर फोरम इज NGO एंड वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड फंड आर 2 implementing partners of NTCA for CATS assessment in India। तो GTF and WWF। The next article is talking about a National Water Award। It is a 3rd edition of National Water Award that has been given by Jal Shakti Ministry. It is for the better management of water resources in the country। तो 2 स्लोगन है, जल समृद्ध भारत और हर घर जल बाय 2024 अंडर जल जीवन मिशन। तो उसमें कौन जीता? उत्तर प्रदेश जीता फर्स्ट, फॉलोड बाय राजस्थान, तमिलनाडु।
अभी इंडिया में कितना वाटर रिक्वायरमेंट है? 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर, विच इंक्रीज टू 1500 अप्रॉक्सीमेटली बाय 2050. The next article is talking about a forest survey report 2021. तो कौन रिलीज करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. उसमें क्या क्या पता चला है? तो पहला है कि देयर हैज़ बीन डिक्रीज इन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम. मैंग्रोव्स भी इंक्रीज किया है 70 स्क्वायर किलोमीटर. टोटल कार्बन स्टॉक भी इंक्रीज किया है 79 मिलियन टन. बैम्बू फॉरेस्ट भी इंक्रीज किया है. साथ ही साथ देयर हैज़ बीन ओवरऑल इंक्रीज इन फॉरेस्ट और ओवरऑल इंक्रीज इन एरिया. तो एरिया भी इंक्रीज किया, फॉरेस्ट भी इंक्रीज किया. एरिया मतलब होता है टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, दोनों मिला करके 24.62% हो गया है अभी. तो फॉरेस्ट कवर में अप्रॉक्सीमेटली 1540 स्क्वायर किलोमीटर और ट्री कवर में 721 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज किया है इन लास्ट 2 ईयर्स. तो फर्स्ट स्टेट कौन है जिसमें ज़्यादा इंक्रीज किया है? पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश, सेकंड तेलंगाना. सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर. तो देखा जाए ये रीजन में डिक्रीज किया है और ये रीजन में डिक्रीज किया है. पंजाब, देन दिल्ली एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन इंक्लूडिंग बंगाल. सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा. तो ये याद रखना चाहिए तीनों बस. तो फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया में क्या फ़र्क है? फॉरेस्ट कवर होता है कि एनी नॉन गवर्नमेंट कैन रिकॉग्नाइज अ लैंड हैविंग फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट कवर है. फॉरेस्ट एरिया इज अ लीगल स्टेटस. जो लीगल लैंड है उसका लीगल स्टेटस होगा कि ये फॉरेस्ट है इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, वो फॉरेस्ट एरिया है. तो ट्री कवर होता है बेसिकली 1 हेक्टेयर लैंड में कितना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, तो ट्री कवर कहा जाता है. तो पहली बार क्या क्या इन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया इन द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट? पहला है कि फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व कॉरिडोर लैंड कंजर्वेशन एरिया ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिगार्डिंग फॉरेस्ट, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, कंपा, देन नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट desertification. The next article is talking about the star with the heartbeat. The group of Indian scientists has spotted a peculiar binary star with a heartbeat. तो कौन देखा? तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके अंडर में है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसका नाम है, स्टार का नाम है SD73619M44. तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हार्ट बीट क्यों है? हार्ट बीट इट शोकेस अ हार्ट बीट बिकॉज ऑफ द रिजेम्बलेंस ऑफ पाथ ऑफ स्टार टू अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट. ईच स्टार ट्रेवल्स इन अ हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट. ये इंपॉर्टेंट है. बाइनरी स्टार है जो हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द कॉमन सेंटर ऑफ मास. और दो स्टार के बीच में डिस्टेंस है वो वेरी करता है. The next article is electroactive nanoparticle. तो फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ द सर्टेन मटेरियल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल स्ट्रेस. अगर मैकेनिकल स्ट्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा. तो फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और साथ ही साथ इन वेरियस एरियाज. तो कहाँ यूज हो सकता है? प्रेशर मैपिंग सेंसर, अकोस्टिक सेंसर्स एक्सेट्रा. तो नैनो पार्टिकल है क्या? इट इज दे आर वेरी टाइनी मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऐसे फ्यूलेरिन, मेटल नैनो पार्टिकल, सिरामिक, पॉलीमेरिक एक्सेट्रा. लिपोसोम, कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल, कार्बन ट्यूब, ग्राफीन, कार्बन डॉट एक्सेट्रा.
That's all for today. Thank you.